Hello to all my dear students of class 5th. This is Priyanka Arora welcoming you all to your maths online class. So students, you all know that we have completed our chapter number 5 and there I have given you all the exercises. So today we are starting the new topic and this topic is your chapter number 7 metric measures. So today I will be explaining you about this topic. So students, please pay attention that what is there related to this chapter. So first of all, there are some points which I am reading. So you have to pay attention on these points. See, there are different measuring unit to measure length, mass and volume. मैथ्स के अंदर अलग अलग तरह की मेजरिंग यूनिट्स होती हैं जिनकी हेल्प से हम लेंथ मतलब की लंबाई, मास मींस वेट का मतलब होता है भार, और वॉल्यूम का मतलब होता है स्टूडेंट्स के कोई भी ऑब्जेक्ट कितनी स्पेस ले रहा है, कितनी प्लेस कवर कर रहा है, तो मैथ्स में उसको वॉल्यूम कहा जाता है. बट इस पर्टिकुलर चैप्टर में जो आप वॉल्यूम को ध्यान में रखेंगे, वॉल्यूम यहाँ पर आपको कैपेसिटी को डिनोट करेगा. कैपेसिटी मींस कोई भी लिक्विड थिंग होगी तो उसको मेजर किया जाएगा वॉल्यूम के साथ में. ओके, सो 3 बेसिक मेजरिंग यूनिट्स आपको ध्यान रखनी है. मेन एक है लेंथ जिसको मैंने बताया कहते हैं लंबाई, दूसरा है मास जिसको हम कहते हैं भार या वेट, एंड थर्ड वन इज वॉल्यूम. ओके, सो यू हैव टू रिमेंबर दीज 3 main basic measuring unit. Now, there are some standard main or base unit you can say of all these 3 measuring units. Like length की जो main unit होती है उसको कहा जाता है मीटर. अब आप इसको स्टूडेंट मेन यूनिट भी कह सकते हो, आप इसको स्टैंडर्ड यूनिट भी कह सकते हो और आप इसको बेस यूनिट भी कह सकते हो. इन तीनों वर्ड्स में से आप कोई भी एक वर्ड को यूज में ले सकते हो. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज स्टैंडर्ड, मेन एंड बेस. ओके, सो द मेन यूनिट ऑफ लेंथ, लंबाई की जो मेन यूनिट होती है वो होती है मीटर. सो यू हैव टू रिमेंबर द मेन यूनिट ऑफ लेंथ, दैट इज मीटर. Whenever this question comes in exam or anywhere or anyone asks you what is the main unit of length, so your reply should be the main unit of length is meter. Similarly, the main unit, or you can say standard unit or base unit, the main unit of measuring mass, भार, मास को, वेट को मेजर करने की जो मेन यूनिट होती है स्टूडेंट्स वो होती है ग्राम. ओके, सो रिमेंबर द मेन यूनिट ऑफ मास, दैट इज ग्राम. देन the main unit of measuring volume, वॉल्यूम को मेजर करने की जो मेन यूनिट होती है या आप कहें जो स्टैंडर्ड यूनिट होती है वो होती है लीटर. ओके स्टूडेंट्स, सो व्हाट यू हैव टू रिमेंबर द मेन यूनिट ऑफ ऑल दीज 3. द मेन यूनिट ऑफ लेंथ इज मीटर, द मेन यूनिट ऑफ मास इज ग्राम एंड द मेन यूनिट ऑफ वॉल्यूम इज लीटर. नाउ अकॉर्डिंग टू दिस you have to draw the tables of all 3 main units. Okay, जो main units हैं, जो measuring units हैं, उनकी हमें tables draw करनी है, and according to that tables you will frame the formulas also. So see, here you can see the table showing units of length. यहाँ पर length की कौन कौन सी units होती है वो सब आपको इस table में show हो रहा है. You also have to draw this table in your notebook and see what is there in the table. First of all students, at the top of the table it is written a table showing the units of length, and इसके बाद में जो first आपको columns दिख रहे हैं उसके अंदर कुछ short forms मैंने लिखे हैं, वो short forms आपको remember कर लेने हैं. Okay, so it is kilo, hecto, deca, then main unit, then deci, centi and at last milli. Okay, so this short forms will remain same in all the 3 tables. ये अभी मैं आपको first table बता रही हूँ, तो जो short form ये first table में है यही short form आगे 2 tables में आपको और कराऊंगी, उसमें भी यही short form हम use मिलेंगे. तो आपको ये ध्यान रखने हैं words. Just remember it: kilo, hecto, deca, main unit, deci, centi, milli, and keep on repeating it, then you will remember it. Kilo, hecto, deca, main unit, deci, centi, milli. Okay, after it how to write this table? हम यहाँ पर कर रहे हैं स्टूडेंट्स
लेंथ। ओके, ये जो टेबल है ये लेंथ की टेबल है, और अभी मैंने आपको ऊपर बताया था कि लेंथ की जो मेन यूनिट होती है वो क्या होती है, मीटर। तो पहले हम यहाँ पर लिख देंगे मीटर मेन यूनिट के नीचे। अब आप देखिए बाकी जो यूनिट्स हैं उनको हम किस तरीके से अरेंज करेंगे। तो फर्स्ट वर्ड यहाँ पे मैंने आपको बताया था किलो। अब इसकी मेन यूनिट अगर मीटर है तो ये जो सारे ऊपर जो फर्स्ट वाले कॉलम में वर्ड्स चल रहे हैं इन सब के आगे हम मीटर लगा देंगे, बिकॉज दिस पर्टिकुलर टेबल इज रिलेटेड टू लेंथ। ये लेंथ की टेबल है, तो लेंथ की टेबल में जितने भी ये जो वर्ड्स हैं इनके साथ में क्या लग जाएगा, मीटर। सो किलो के साथ में लग जाएगा मीटर, ये हो जाएगा किलोमीटर। हेक्टो के साथ में भी लग जाएगा मीटर, तो ये हो जाएगा हेक्टोमीटर। डेका के साथ में भी आप लगा देंगे मीटर, तो ये हो जाएगा डेकामीटर। डेसी के साथ में हम लगाएंगे मीटर, तो ये हो जाएगा डेसीमीटर। सेंटी के साथ में मीटर, देन इट विल बिकम सेंटीमीटर। एंड एट लास्ट मिली के साथ में मीटर, तो ये हो जाएगा मिलीमीटर। ओके, और इसको अब हम कैसे लिखेंगे शॉर्ट यूनिट्स के अंदर। तो मीटर का जो फॉर्म होता है लिखने का वो होता है लेटर एम। देन किलोमीटर को हम डिनोट करते हैं के एम से। हेक्टोमीटर को हम डिनोट करते हैं एच एम से। डेकामीटर को स्टूडेंट्स हम मेंशन करते हैं डी ए एम से। डेसीमीटर को हम मेंशन करते हैं डी एम से। सेंटीमीटर को मेंशन करते हैं सी एम से। एंड मिलीमीटर को हम मेंशन करते हैं एम एम से। ओके, सो ये आपको ध्यान रखना है सबको किस तरीके से हम शॉर्ट फॉर्म में मेंशन करते हैं। आप यहाँ पर देखेंगे स्टूडेंट्स ये है डेका और ये है डेसी। ओके, तो हम दोनों के लिए डीएम डीएम यूज में नहीं ले सकते, क्योंकि बाकी सब में आप देखोगे किलोमीटर है तो इसका के और एम यूज में लेके के एम बन गया। हेक्टोमीटर है तो एच और एम यूज में लेके एच एम बन गया। यहाँ पर सेंटीमीटर है, सी और एम यूज में लेके सेंटीमीटर बन गया। मिलीमीटर, सो एम और एम यूज में लेके एम एम मिलीमीटर बन गया। अब यहाँ पे डी और एम यूज में लेंगे तो डीएम, यहाँ पे भी अगर हम डी और एम यूज में लेते हैं तो ये भी डीएम हो जाएगा। तो दोनों को अगर हम डीएम डीएम से रिप्रेजेंट करेंगे तो क्या होगा, कंफ्यूजन क्रिएट होगा, हमें नहीं पता चलेगा कौन सा डीएम डेकामीटर को डिनोट कर रहा है और कौन सा डीएम डेसीमीटर को डिनोट कर रहा है। तो इसी वजह से जो डेका वर्ड है उसको रिप्रेजेंट किया जाता है डी और ए से। पहले उसको रिप्रेजेंट करते हैं दो लेटर डी ए से, उसके आगे मेन यूनिट लग जाती है एम, तो ये बन जाता है डी ए एम डेका मीटर। सो आई होप इट इज clear. The table related to length is clear. Main unit is meter and according to the main unit you will write all the other units. Okay. अब यहाँ पर जो मेन यूनिट होती है, जैसा मैंने बताया आपको, मेन यूनिट को हम स्टैंडर्ड यूनिट भी कह सकते हैं। स्टैंडर्ड यूनिट के लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जितनी भी यूनिट्स आ रही है डेका हेक्टो किलो, ये सारी हायर यूनिट्स हैं। ओके, और स्टैंडर्ड यूनिट्स के लेफ्ट राइट हैंड साइड में जो यूनिट्स आ रही हैं स्टूडेंट्स, ये सारी जो यूनिट्स हैं ये लोअर यूनिट्स हैं। ओके, लेफ्ट हैंड साइड के अंदर हायर यूनिट्स और राइट हैंड साइड के अंदर लोअर यूनिट्स होती हैं। ओके, छोटी यूनिट्स होती हैं और इधर सारी बड़ी यूनिट्स होती हैं। सो लेट मी एक्सप्लेन two more tables, then I will talk about it more. See now, the next table is the table showing units of mass. इसमें आपको मास की यूनिट्स के बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी। मास यानी कि वेट, और हिंदी में हम इसको बोलते हैं भार। इसमें भी आप देखेंगे स्टूडेंट्स जो टॉप में जो वर्ड्स लिखे हुए हैं वो सिमिलर है, जैसा मैंने आपको बताया ये वर्ड्स सिमिलर रहेंगे, आपको इसको रिमेमोराइज करना है, याद कर लेना है। किलो, हेक्टो, डेका, then main unit and then deci, centi and milli. ओके, सो ये वर्ड्स आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद में आप देखिए स्टूडेंट्स के हम ये मास की टेबल ड्रॉ कर रहे हैं। ओके, वेट की टेबल ड्रॉ कर रहे हैं एंड द मेन यूनिट ऑफ मास मैंने आपको बताया था बिगनिंग में, द मेन यूनिट ऑफ मास इज ग्राम। मास की मेन यूनिट होती है ग्राम। ओके, सो इसी ग्राम को यूज में लेके हम बाकी की जो टेबल है उसको फिल अप करेंगे। तो देखिए फर्स्ट था किलो, इसके साथ में मेन यूनिट लग गई ग्राम, सो ये हो गया किलोग्राम केजी। देन हेक्टो, इसके साथ में भी लग गया ग्राम, सो ये हो गया हेक्टोग्राम, दैट मींस एचजी। देन डेका के साथ में भी हमने मेंशन कर दिया ग्राम, सो ये हो गया डेकाग्राम डीएजी। देन डेसी के साथ में हमने मेंशन किया ग्राम, सो ये हो गया डेसीग्राम डीजी। सेंटी के साथ में भी हमने मेंशन किया ग्राम, सो ये हो गया सेंटीग्राम सीजी। मिली के साथ में मेंशन किया गया वर्ड ग्राम, सो ये हो गया मिलीग्राम, जिसको हम बोलते हैं mg। ओके, अगेन यहाँ पर स्टैंडर्ड यूनिट है, मेन यूनिट, स्टैंडर्ड यूनिट, बेस यूनिट, आप कुछ भी कहिए, सो ये है स्टैंडर्ड यूनिट।
स्टैंडर्ड यूनिट के लेफ्ट हैंड साइड में, ओके, स्टैंडर्ड यूनिट के लेफ्ट हैंड साइड में सारी हायर यूनिट्स हैं, दैट मींस किलोग्राम, हेक्टोग्राम, डेकाग्राम, ये सारी हायर यूनिट्स हैं, और राइट हैंड साइड में है सारी लोअर यूनिट्स, दैट मींस डेसीग्राम, सेंटीग्राम, मिलीग्राम, ये है सारी लोअर यूनिट्स, ओके। नाउ तो ये हो गया इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग टेबल ऑफ units of mass. Now let us move on to the table showing units of volume. यहाँ पर आपको वॉल्यूम के बारे में इंफॉर्मेशन गिवन है स्टूडेंट्स, और वॉल्यूम की जो मेन यूनिट होती है, वॉल्यूम मतलब कैपेसिटी भी बोलते हैं हम वॉल्यूम को, और वॉल्यूम की जो मेन यूनिट होती है वो होती है लीटर। तो कोई भी जो लिक्विड थिंग्स होती हैं उसको मेजर करने की जो मेन यूनिट होती है वो होती है लीटर। लीटर को हम डिनोट करते हैं लेटर एल से, ओके। सो यहाँ पर भी आप देखिए टॉप के जो वर्ड्स हैं वो सेम है, किलो, किलो के अंदर हमने लगाया लीटर, सो ये हो गया किलो लीटर, इसको डिनोट करते हैं केएल से। हेक्टो के अंदर हमने लगाया लीटर वर्ड, लीटर लगाने से ये हो गया हेक्टोलीटर, दैट मींस HL। देन डेका के अंदर भी हमने मेंशन किया वर्ड लीटर, सो ये हो गया डेका लीटर, इसको हम शो करेंगे DAL से। देन आफ्टर डेका लीटर इट इज डेसीलीटर, डेसी के अंदर लीटर को ऐड किया डेसीलीटर, और इसको शो करेंगे DL से। देन सेंटी में आप लीटर को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा सेंटीलीटर, इसको हम डिनोट करेंगे CL से। देन मिली के साथ में आप लीटर को ऐड करेंगे, हो जाएगा मिलीलीटर, और इसको हम शो करेंगे ML से। यहाँ पर एक बात आप ध्यान रखेंगे स्टूडेंट्स, जो मेन यूनिट है वो कैपिटल के अंदर है, ओके। जो लेटर L है वो कैपिटल में है, और बाकी सबके साथ में भी जब हम L को यूज में ले रहे हैं तो आप देख सकते हो कैपिटल L लगा हुआ है, किलोलीटर, हेक्टोलीटर, डेकालीटर, डेसीलीटर, सेंटीलीटर, मिलीलीटर। और इसमें भी वही चीज आपको ध्यान रखनी है कि सेंटर में होगा हमारा क्या, स्टैंडर्ड यूनिट, मेन यूनिट, बेस यूनिट, आप कोई भी कहिए, और इसके लेफ्ट हैंड साइड में होंगी हमारी हायर यूनिट और राइट हैंड साइड में होंगी हमारी लोअर यूनिट्स, ओके। देन नाउ स्टूडेंट्स सी द लार्जर यूनिट्स आर मल्टीपल्स ऑफ द बेस यूनिट। जो लार्जर यूनिट होती है वो बेस यूनिट के मल्टीपल्स होते हैं। बेस यूनिट मींस जो भी बेस यूनिट सेंटर में आ रही है, लाइक लेंथ में मैंने आपको बताया था बेस यूनिट होगी मीटर, देन मास में मेन यूनिट होगी ग्राम, और वॉल्यूम में मेन यूनिट होगी लीटर। सो लार्जर यूनिट, इस तरफ जो लार्जर यूनिट, हायर यूनिट आती है वो मल्टीप्लाई होकर आती है, मल्टीपल्स होती है बेस यूनिट की, ओके। एंड द स्मॉलर यूनिट्स आर फ्रैक्शंस ऑफ द बेस यूनिट, और इस तरफ जो यूनिट्स आती हैं वो फ्रैक्शंस में आती है। द मोर यू विल लर्न अबाउट दिस इन द एक्सरसाइजेस ऑफ चैप्टर नंबर 7। ज्यादा डिटेल इंफॉर्मेशन इन दोनों पॉइंट्स की आपको जब हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे उसमें समझने को मिलेगी। यहाँ पर आपको बस यही ध्यान रखना है कि ये तीनों टेबल्स क्या होती हैं और किस तरीके से इनकी मेन यूनिट्स को हम डिफाइन करते हैं, ओके स्टूडेंट्स। नाउ I am telling you that this side is called as the left hand side. ये हमारी कहलाएगी लेफ्ट हैंड साइड। यहाँ पर आपको सारी जो बिगर यूनिट्स होंगी वो देखने को मिलेगी लेफ्ट हैंड साइड में, एंड दिस इज द राइट हैंड साइड। ये राइट हैंड साइड है, यहाँ पर आपको सारी स्मॉलर यूनिट्स देखने को मिलेगी, ओके। अब आप देखिए, जैसे आपको एक फॉर्मूला फ्रेम करना है, आप अपने खुद के फॉर्मूला फ्रेम कर सकते हो। यहाँ पर मैं आपको मेन यूनिट के साथ में फॉर्मूला फ्रेम करना सिखा रही हूँ। तो देखिए किलोमीटर है, यहाँ पर सबसे ग्रेटर, सबसे हाईएस्ट यूनिट है किलोमीटर, और मेन यूनिट है मीटर। अगर आपको किलोमीटर और मीटर के बीच में फॉर्मूला फ्रेम करना है स्टूडेंट्स, तो आप कैसे फ्रेम करेंगे? आप देखेंगे किलोमीटर और मीटर में से ग्रेटर क्या है, किलोमीटर और मीटर में से ग्रेटर है किलोमीटर, तो पहले आप लिखेंगे जो भी ग्रेटर है आप वो लिखेंगे। तो पहले आपने लिखा किलोमीटर इज इक्वल टू, ओके। अब कितना किलोमीटर यहाँ पर हम मेंशन करेंगे, इट इज 1 किलोमीटर, हमें मेंशन करना है 1 किलोमीटर। अब 1 किलोमीटर के अंदर कितने मीटर्स होते हैं, तो आप यहाँ पर देखिए किलोमीटर और मीटर के बीच में कितना गैप है। सो यहाँ पर आप देखिए 1 2 3, तो यहाँ पर 3 जो प्लेसेस हैं उसका गैप है, 3 प्लेसेस मींस 3 जीरोस, तो यहाँ पर हम लगा देंगे 3 जीरोस और यहाँ आ जाएगा आपका मीटर। सो ये आपका फॉर्मूला बन गया 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 1000 मीटर, ओके। इसी तरीके से स्टूडेंट्स अगर आपको मीटर और मिलीमीटर के बीच में फॉर्मूला फ्रेम करना है, तो मीटर और मिलीमीटर के बीच में फॉर्मूला फ्रेम करने के लिए आप क्या करेंगे, आप पहले देखेंगे मीटर और मिलीमीटर में से
ग्रेटर कौन सा है, तो जो ग्रेटर होगा पहले आप वो लिखेंगे। तो मीटर और मिलीमीटर से ग्रेटर है मीटर, तो हमने लिख दिया पहले 1 मीटर इज इक्वल टू, अब देखिए मीटर और मिलीमीटर के बीच में कितना गैप है, आप देखेंगे मीटर और मिलीमीटर के बीच में 1 2 3 3 का गैप है। ओके, 3 गैप है, दैट मीन्स अगेन यहाँ पर क्या आ जाएंगे 3 जीरोस और लास्ट में आप लगा देंगे यूनिट मिलीमीटर। सो ये फॉर्मूला हो जाएगा 1 मीटर इज इक्वल्स टू 1000 मिलीमीटर। इसी तरीके से आप किसी भी दो यूनिट्स के बीच में फॉर्मूला फ्रेम कर सकते हैं। लाइक अगर मैं आपको बोलती हूँ हेक्टोमीटर और मीटर के बीच में आपको फॉर्मूला फ्रेम करना है, तो हेक्टोमीटर और मीटर के बीच में आप फॉर्मूला कैसे फ्रेम कर सकते हैं, पहले आपको देखना होगा हेक्टोमीटर और मीटर में से ग्रेटर कौन सा है। सो यस, हेक्टोमीटर इज ग्रेटर। सो पहले आप लिखेंगे 1 HM। अब 1 HM एंड M मीटर, हेक्टोमीटर और मीटर के बीच में कितना गैप है, सो 1 एंड 2 2 प्लेसेस का गैप है यहाँ पर, 2 प्लेसेस मींस 2 जीरोस, तो आप यहाँ पे 2 जीरोस लगा देंगे और लास्ट में लग जाएगी यूनिट मीटर। सो 1 हेक्टोमीटर इज इक्वल्स टू 100 मीटर। ये आप ध्यान रखेंगे कि इक्वल्स टू के लेफ्ट हैंड साइड में आप हायर यूनिट को ही रखेंगे और राइट हैंड साइड में आप लोअर यूनिट को रखेंगे। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूं हेक्टोमीटर और मीटर में से, तो हेक्टोमीटर ग्रेटर है और जो मीटर है वो स्मॉलर है। ओके, तो इस तरफ आएंगी आपकी सारी लोअर यूनिट्स, जो राइट हैंड साइड में है वो लोअर यूनिट्स आएंगी और जो लेफ्ट हैंड साइड में है वो आपकी हायर यूनिट्स चलेंगी। तो हायर यूनिट्स आप इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड में प्लेस करेंगे और लोअर यूनिट आप इक्वल टू के राइट हैंड साइड में प्लेस करेंगे। ओके, सो यहाँ पर देखिए जो मैं आपको बता रही थी, जो हायर यूनिट्स आएंगी आपकी, जितनी भी हायर यूनिट्स होंगी वो रहेंगी आपकी लेफ्ट हैंड साइड में। ये देखिए यहाँ पर है आपका लेफ्ट हैंड साइड। ओके, सो लेफ्ट हैंड साइड में सारी आपकी हायर यूनिट्स रहेंगी और जो आपकी लोअर यूनिट्स रहेंगी वो आ जाएंगी आपकी राइट हैंड साइड में। यहाँ पर आ जाएंगी सारी लोअर यूनिट्स और लोअर यूनिट्स को हम कौन सा साइड बोलेंगे, लोअर यूनिट्स की जो साइड होगी वो साइड कहलाएगी आपकी राइट हैंड साइड। ओके, सो यहाँ पर सारे आ जाएंगे आपके लोअर यूनिट्स। सो जब आप कोई भी फॉर्मूला फ्रेम करेंगे तो उसमें आप ध्यान रखिएगा लेफ्ट हैंड साइड में हायर यूनिट एंड राइट हैंड साइड में स्मॉलर यूनिट। ये मैंने आपको बताया था लेंथ के फॉर्मूला कैसे हम फ्रेम करेंगे। इसी तरीके से अगर हम मास के फॉर्मूला फ्रेम करते हैं तो वो भी हो जाएगा। यहाँ पर जैसे देखिए हमें फॉर्मूला फ्रेम करना है डेकाग्राम और डेसीग्राम के बीच में। अगर डेकाग्राम और डेसीग्राम के बीच में हम फॉर्मूला फ्रेम करेंगे तो दोनों में से ग्रेटर कौन सा होगा, ऑब्वियसली जो लेफ्ट हैंड साइड में है वो ग्रेटर होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे डेकाग्राम। सो 1 DAG लिखिए आप पहले, 1 डेकाग्राम इज इक्वल्स टू, डेसीग्राम के बीच में फॉर्मूला बनाना है तो डेकाग्राम और डेसीग्राम के बीच में आप देखिए कितनी प्लेसेस है 1 2। ओके, तो यहाँ पर आप कितने जीरोस लगा देंगे 100 एंड देन DG। ओके, सो यहाँ पर 2 प्लेसेस, जितनी प्लेसेस होंगी बीच में आपको उतने ही जीरोस लगाने हैं। सो डेसाग्राम से अगर आप डेसीग्राम तक पहुंचेंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, 2 प्लेसेस तक जाना पड़ेगा, क्रॉस करना पड़ेगा, तो यहाँ पर आप लगा देंगे 100। ओके, इसी तरीके से अगर हमें ग्राम और सेंटीग्राम के बीच में फॉर्मूला फ्रेम करना है, सो ग्राम और सेंटीग्राम में से ग्रेटर कौन सा होगा स्टूडेंट्स, लेफ्ट हैंड साइड वाला ग्रेटर होगा। सो लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है ग्राम, तो पहले हम लिखेंगे 1 ग्राम 1 G इज इक्वल टू सेंटीग्राम। ग्राम और सेंटीग्राम के बीच में आप देख सकते हो 2 प्लेसेस हैं, सो हम यहाँ पर लगा देंगे 100 एंड CG सेंटीग्राम। सो ये फॉर्मूला हो गया ग्राम एंड सेंटीग्राम के बीच में। सो इस तरीके से आप कोई भी फॉर्मूला फ्रेम कर सकते हो। सो अगर यही फॉर्मूला फ्रेम का मैं कैपेसिटी के साथ में वॉल्यूम के साथ में लेती हूँ अगर, सो वॉल्यूम के अंदर भी अगर आपको फॉर्मूला बनाना है, लाइक अगर किलोलीटर और लीटर के बीच में हम फॉर्मूला बनाते हैं तो किलोलीटर और लीटर में से ग्रेटर क्या होगा स्टूडेंट्स, किलोलीटर। सो 1 किलोलीटर इज इक्वल टू, किलोलीटर और लीटर के बीच में हम फॉर्मूला बना रहे हैं ना, तो हमें देखना है इसके बीच में कितनी प्लेसेस है, किलोलीटर से लीटर तक कितनी प्लेसेस आ रही है 1 2 3। सो हम लगा देंगे यहाँ पर 3 जीरोस एंड देन लीटर। ओके, इसी तरीके से अगर आपको किलोलीटर और मिलीलीटर के बीच में फॉर्मूला फ्रेम करना है, ओके, फर्स्ट हम ले रहे हैं किलोलीटर और लास्ट हम ले रहे हैं मिलीलीटर, इसके बीच में अगर हमें फॉर्मूला फ्रेम करना है तो इन दोनों में से स्टूडेंट्स ग्रेटर कौन सा होगा,
आपको पता है इन दोनों में से ग्रेटर ऑब्वियसली किलोलीटर ग्रेटर है, क्योंकि वो एक्सट्रीम लेफ्ट में है, बिल्कुल लेफ्ट में है, तो लेफ्ट वाली ग्रेटर होती है। तो पहले हमारे पास में क्या आ जाएगा, 1 किलोलीटर इज इक्वल टू मिलीलीटर के बीच में हमें फॉर्मूला लगाना है। तो अब आप किलोलीटर को मत काउंट करिए, और किलोलीटर के बाद में जितनी भी प्लेसेस आ रही है उनको सबको काउंट करिए। सो 1 2 3 4 5 6, ओके। जो हमने लिख दिया उसको काउंट ना करके आगे की सारी प्लेसेस हम काउंट करेंगे। सो किलोलीटर से मिलीलीटर के बीच में टोटल 6 प्लेसेस आ रही हैं। आप देखिए 1 2 3 4 5 6, तो हम 1 के बाद में कितने जीरो लगाएंगे, 6, 1 2 3 4 5 6, ओके। ये 6 जीरोस लगाने के बाद में हम यूनिट लगा देंगे मिलीलीटर, एम एल, एम स्मॉल एल कैपिटल। सो ये फॉर्मूला बन गया आपका किलोलीटर से मिलीलीटर के बीच में, ओके। फर्दर एक्सप्लेनेशन, इसके बाद में जो और डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है वो मैं आपको जब एक्सरसाइज 7.1 एक्सप्लेन करूंगी स्टूडेंट्स, उसमें शो करूंगी। अभी बस आपको जो ध्यान रखना है मेनली, वो आपको ये ध्यान रखना है स्टूडेंट्स, 3 बातें आपको बहुत ही इंपॉर्टेंटली ध्यान रखनी है। फर्स्ट मैंने बताया आपको, हमने फर्स्ट टेबल करी लेंथ के बारे में। सो लेंथ की जो मेन यूनिट होती है वो क्या होती है, मीटर, ओके, जिसको हम डिनोट करते हैं लेटर एम से। देन लेंथ के बाद में जो हमने करा वो मास, मास की स्टूडेंट्स जो मेन यूनिट होगी वो क्या होगी, ग्राम, जिसको हम डिनोट करेंगे लेटर जी से। एंड देन थर्ड जो टेबल है उसको हम बोलते हैं वॉल्यूम, और वॉल्यूम की जो मेन यूनिट होगी स्टूडेंट्स वो होगी क्या, वो होगी आपकी लीटर, और लीटर को हम डिनोट करते हैं लेटर एल से, ओके। सो ये 3 इंपॉर्टेंट थिंग्स हैं जो आपको इस लेक्चर में ध्यान रखनी है। मेन यूनिट ऑफ लेंथ इज मीटर, main unit of mass is gram, and the main unit of volume is liter. So please remember this, and the remaining things related to this particular chapter I will be discussing in my next lecture. So today I am finishing it here only. Now I will meet you back in the next online class. Till then, you students, please take good care of yourself. Thank you so much for today's class.